Welcome back, dear students. Let us continue with our course on environmental engineering. For all the students who are connecting with us for the first time, we are on the platform of Let's Crack the Gate. It's a pan-India initiative taken up by the TechUp faculties who are spread it across India. So our motive remains the same, that we need more and more of our students to qualify the gate, and not only our students but students across India of all engineering disciplines. So this is an initiative taken up by all the TechUp faculties to provide free online GATE coaching with doubt solving and mock test sessions for all the students of our nation and beyond. So continuing with lecture 10 today. So in the previous lectures we have learnt about alkalinity, hardness. Okay, I hope you have understood, you have watched the lectures completely. If there have been any doubts, please put in the comments or in our telegram group. So let us start our today's topic. We'll be discussing the next the chemical water quality parameter, that is chloride content. Now we will be discussing some major compounds or elements. Sorry, we will be discussing some major compounds or elements that are important for a environmental engineer to judge whether the raw water is usable and what kind of treatment should be done. So they will vary as we discuss now. So what is the important thing that will change now, that impacts will change? So how it will change, how we quantify, and what are different procedures that we must start learning now. So for chloride content, if there is a presence of chloride content in high concentration, it it depicts that either there has been due to sewage or industrial waste has been there from the source. Okay, for example, I'm just drawing a basic example. Let us take a river. The water is flowing in this direction. Let us say you have installed one intake here at this level. This is your upstream, this is your downstream. Okay, and let us say there has been some industry or sewage area here. Sewage is dumped here or industrial waste is dumped here, which is not properly uh, cleansed or decomposed during this length or during this time duration or length duration, and unfortunately it is picked up in our water intake. So what will happen, this water will go into the water treatment plant and it will become dangerous and hazardous for us. So that is why we need to analyze, and that is what, whenever we analyze and whenever such chloride or different contents that we'll be discussing now on, if they come in high concentration, then it depicts different things. For example, for chloride, that I told you that if there is a high concentration, it conveys us, it expresses that there has been sewage pollution or there has been pollution with regards to industrial waste. So we need to control it, we need to do some treatment with regards to it. So let us write down these points. Please take out your notebooks and start taking some notes. So presence of chlorine in high concentration, in high concentration indicates pollution, indicates pollution of water either due to industrial waste, or sewage. Okay, now how do we quantify that what is the content of chloride in the water sample? So for that we do titration using silver nitrate
as the titrant, and here the indicator that we use is potassium chromate. Okay, so based upon that reaction, we titrate and we find out the value of chloride that is present in the water sample. Okay, so let us quickly write this down also. Chlorides in water, chlorides in water can be determined, can be determined by titrating it with standard silver nitrate or AgNO3 solution, standard AgNO3 solution using potassium chromate or K2CrO4 as indicator. Okay, so what will be happening? Let us understand it by help of some basic reactions. So when silver nitrate comes in contact with chloride ion, it will form silver chloride, which will be white in color, and it will form a precipitate that will settle down. Okay, further, after the completion of chloride, after this precipitate formation is completed, then this potassium chromate will react and it will change its color due to formation of silver chromate. This will also precipitate down, and the color will be red brown. So as we will just start getting this red brown precipitate, that means the titration is complete and the amount of silver nitrate used will give us the value of chloride present in the water sample. Okay, now this potassium chromate, this is originally white in color, originally white in color. Okay, and as it reaches its working range and as it reacts with silver nitrates to form silver chromate, it changes its color to red brown. Okay, next important thing we need to learn about chloride is the acceptable limits and the cause for rejection values. So acceptable limit is 200 milligrams per liter, and cause for rejection value is cause for rejection value is 1000 milligrams per liter. Okay, next one we have is nitrogen content. Now again, this is also very important. Put a star mark here. Many questions are asked in GATE and other competitive exams out of this entire topic. This is a big topic. So what does the presence of nitrogen in water represents? It represents that there has been pollution, but what has been the source of pollution? The pollution has been due to presence of organic matter. Now there are different forms of nitrogen available with us. So different forms of nitrogen indicate different forms of pollution. Okay, one may indicate organic decomposition, another may indicate that there has been some partial decomposition, that decomposition is still ongoing on. So let us learn what are the different forms and what do they indicate. Okay, and again, what will be the acceptable limits for those specific forms of nitrogen. Okay, so let us first write this down, that
presence of nitrogen presence of nitrogen in water indicates indicates its pollution due to organic matter indicates its pollution due to organic matter. Okay, now next let us write what are the different forms. So nitrogen is available in any of the following form. It is not necessary that all these will be available in the raw water, but there is a chance. Okay, so they may be available or they may be found in raw water, which are free ammonia. We'll learn about them individually. Let's list them down for now. Next one we have is organic ammonia. Okay. Next we have is nitrite. What is nitrite? NO2 minus. Then next we have nitrate. So these are four different forms that we need to learn. We need to learn about their properties, what do they indicate, and what is the acceptable limit. Okay. Now let us start. Let us start with free ammonia. Okay. So free ammonia in water, what does it indicate? It indicates that there has been a recent pollution. Okay. And how can we quantify? We can simply, it is very easy to quantify free ammonia. We need to just boil the water sample and we need to note the amount of ammonia gas that has been released. Okay. With the help of this simple calculation, we can find out that there is free ammonia and how much free ammonia is there. Okay. If it is within acceptable limits, then it's okay. Otherwise, we need to do some treatment processes for the same. Okay. So please write down indicates free ammonia indicates the recent pollution of water. The recent pollution of water. ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो सोर्स का इनटेक है उसके आसपास कहीं पे पॉल्यूशन हुआ है जिसके कारण आपको फ्री अमोनिया उसमें पानी में आ गई। ये आपको सिर्फ ये भी बता रही है कि रिसेंट पॉल्यूशन के साथ साथ कि उसमें और भी कंटेमिनेंट हो सकते हैं, तो अपने को वो चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नाउ कैसे डिटरमाइन होता है वो भी लिख लेते हैं। सो फ्री अमोनिया कैन बी डिटरमाइंड free ammonia can be determined by simply boiling the sample, by simply boiling the water sample and noting down and noting the amount of ammonia gas that is released, or we can also write ammonia gas that has been liberated. Okay, next point is about the acceptable limit. So acceptable limit for ammonia, free ammonia, is 0.15 milligrams per liter. Okay, 0.15 milligrams per liter. Moving on to the next one.
we have organic ammonia, organic ammonia. Okay, so what does organic ammonia indicates? It indicates that there has been nitrogen before the decomposition of organic matter in the water. कि आपके जो भी आपका पानी का सोर्स है वहां पे नाइट्रोजन पहले से मौजूद था जहां ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ. ओके, इसको अपन सिंपली बॉइलिंग से तो नहीं हटा सकते, बॉइलिंग प्रोसेस से क्वांटिफाई कर सकते हैं. जो अभी अपन ने फ्री अमोनिया के लिए जो सैंपल को बॉईल किया उसी को अपन बॉईल करना कंटिन्यू रखेंगे. जब सारी अमोनिया गैस एक बार लिबरेट हो जाती है फिर उसमें अपन पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, वो एल्कलाइन रिएजेंट है और वो उससे रिएक्ट करेगा और साथ ही और अमोनिया गैस लिबरेट होगी. इस बार जो अमोनिया गैस लिबरेट होगी वो अपने को ऑर्गेनिक अमोनिया होगी और वो क्वांटिफाई करने में हेल्प करेगी कि ऑर्गेनिक अमोनिया कंटेंट कितना है. ठीक है. पोटेशियम परमैंगनेट क्यों डालना पड़ता है? अगेन पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत इसलिए पड़ती है इस केस में क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने को एक रिएजेंट डालना पड़ता है. एंड पोटेशियम परमैंगनेट सिंस इट इज एन स्ट्रांग एल्कलाइन रिएजेंट सो इट हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. सो ये कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है और लास्ट में अगेन इसकी जो भी एक्सेप्टेबल लिमिट है वो याद रखनी है. तो पहला पॉइंट जो कि अपना था कि ये क्या बता रहा है, तो इसमें ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है अगर आपके वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक अमोनिया निकल कर आता है कि नाइट्रोजन पहले से प्रेजेंट था. कहाँ पे? पहले से प्रेजेंट था जहाँ पे ऑर्गेनिक अमोनिया का डीकम्पोजिशन, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन से पहले ही नाइट्रोजन प्रेजेंट था वहां पे. तो ये इंडिकेट करने के लिए ऑर्गेनिक अमोनिया हेल्प करता है. ओके, सो लेट अस राइट दीज पॉइंट्स. ऑर्गेनिक अमोनिया in water, organic ammonia in water indicates presence of nitrogen before the decomposition of organic matter has started. Before the decomposition of organic matter has started. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके डिटर्मिनेशन के रिलेटेड. ऑर्गेनिक अमोनिया कैन बी डिटरमिन्ड. Organic ammonia can be determined by boiling the already boiled, जो ऊपर बॉईल कर लिया था ना सैंपल उसी को वापस से यूज कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं. ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर सैंपल by addition of strong alkaline reagent like KMNO4 and noting the amount of gas liberated. So this is about organic ammonia determination. जो आपका ऑलरेडी ये लेटर से बीकर है, वाटर सैंपल है, इसमें यू आर बॉइलिंग इट
सो बाय सिंपल बॉइलिंग क्या हो रहा है इसमें, ये लेटर से आपका टेस्ट सैंपल है। सिंपल बॉइलिंग से जो आपकी फ्री अमोनिया थी वो लिबरेट हो गई। नेक्स्ट बॉइलिंग प्लस KMnO4 ऐड करने से जो बॉन्ड था ऑर्गेनिक अमोनिया का वो भी ब्रेक होता है, एंड फिर इसके साथ में ऑर्गेनिक अमोनिया भी लिबरेट होने लग जाती है। ओके, सो विद दिस वी कैन क्वांटिफाई द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया। ओके, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए दैट bond energy is very high, hence KMnO4 is required. KMnO4 is required to liberate organic ammonia. To liberate organic ammonia. So, what is the acceptable limit? Acceptable limit for organic ammonia is 0.3 milligrams per liter. ओके, अब एक एग्जाम्स में एक दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, एक दूसरी टर्म आपके सामने रख दी जाती है, एंड आप बुक रेफर करेंगे, बुक से रीडिंग करेंगे तो भी आपको ये टर्म मिलेगी। तो एक बार इस टर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज जेल्डाज अमोनिया। जेल्डाज अमोनिया, what is Gelda's ammonia? Gelda's ammonia is nothing but the total combination of free ammonia plus organic ammonia that is present in the water. So the combination of free ammonia and organic ammonia combined form is termed as Gelda's ammonia. Okay, लिख लीजिए, इसको भी इम्पोर्टेंट है, मैं पूरा लिख देता हूँ। फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया। आगे चलते हैं नाइट्राइट की तरफ। नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस। ओके, नाइट्राइट क्या इंडिकेट कर रहा है? नाइट्राइट इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर है अपना, इसमें ऑर्गेनिक मैटर का पार्शियल डिकम्पोजिशन हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से डिकम्पोज भी नहीं हुआ है। तो नाइट्राइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, एंड अपन नहीं चाहते कि पानी में पार्शियल डिकम्पोजिशन हो ऑर्गेनिक मैटर का। ट्रीटमेंट से पहले अपन चाहते हैं कि जितना ऑर्गेनिक मैटर है वो पहले ही फिनिश हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, बिकॉज all this organic matter turns into disease causing agent when we supply the water in our distribution system. तो नाइट्राइट के बारे में एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट in water is highly dangerous, is highly dangerous as it indicates partial decomposition of as it indicates partial decomposition of organic matter.
partial decomposition of organic matter. नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? सो इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द कलर मैचिंग टेक्निक्स in which the color in the water sample it is induced by addition of sulfonic acid and naphthamine. ओके तो सल्फोनिक एसिड और नेप्थामीन को जब वाटर सैंपल में ऐड करते हैं तो इसमें कलर आता है एंड फिर अपन कलर मैचिंग टेक्निक यूज करके अपन फाइंड आउट करते हैं कि नाइट्रेट कंटेंट कितना है. कलर मैचिंग टेक्निक अपन ने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं. आई होप यू कैन रिकॉल राइट नाउ कि कलर मैचिंग टेक्निक क्या होती थी. मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसलिए. सो लेट अस राइट दिस पॉइंट डायरेक्टली. नाइट्राइट in water nitrite in water is determined nitrite in water is determined using color matching technique using color matching technique and color is induced by addition of sulfonic acid and naphthamine ओके. अब अपन ने पहली लाइन में लिखा है कि नाइट्राइट का प्रेजेंस वाटर में बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये पार्शियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट कर रहा है. अपन नहीं चाहते बिल्कुल भी पार्शियल डीकम्पोजिशन हो. तो इसके लिए जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, क्या अपन कोई एक्सेप्ट करेंगे ऐसी कोई भी चीज को? जी नहीं. तो इसकी जो अपन एक्सेप्टेबल लिमिट रखते हैं इट इज 0 milligrams per liter. That is that no nitrite should be observed in the water sample, and if there is if there is presence of nitrite, then the intake should be chosen differently, or the reason because of which the partial decomposition is happening, so it should be addressed. Okay. Next, we need to discuss about nitrate. Okay. So what does nitrate indicates? Nitrate indicates that there is a complete decomposition of organic matter. It is not dangerous, but अगर इसकी concentration high रहती है, it is found to be very high, then it becomes dangerous, and it affects mainly infants. छोटे बेबीज को ज़्यादा, छोटे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये. एक बीमारी होती है ब्लू बेबी डिजीज या मैथेमोग्लोबिनेमिया. वो नाइट्रेट के एक्सेस होने में वाटर में उसके कारण हो जाती है. तो अपन अगेन चाहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रहे. ओके. सो लेट अस लर्न अबाउट इट. अगेन इसका भी डिटर्मिनेशन है सिमिलर टू नाइट्राइट है, कलर मैचिंग टेक्निक से होता है. एंड कलर मैचिंग टेक्निक के लिए इसमें आपका फिनॉल डाइसल्फोनिक एसिड यूज करते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो उससे अपने को वैल्यू निकल कर आ जाती है कि नाइट्रेट कितना है कलर मैचिंग टेक्निक यूज करके. सो प्लीज राइट डाउन. Presence of nitrate in water. Presence of nitrate in water is not harmful as it indicates complete decomposition
complete decomposition of organic matter but if it is present in high concentration but if it is present in high concentration then in some cases it affects the infants resulting in disease जिसका नाम है मैथिमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है पर आपको याद रखना पड़ेगा। काफ़ी बार मैं बहुत क्वेश्चन पेपर्स में इसको देख चुका हूँ। गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरे उसमें तो आते ही रहते हैं, सो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैथिमोग्लोबिनेमिया, METHEMOGLOBINEMIA, इसका दूसरा नाम है ब्लू बेबी डिजीज। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। नाइट्रेट in water is determined using color matching technique and the color is induced by adding or by addition of phenol disulfonic acid प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो इस तरीके से अपन वैल्यू निकालते हैं एंड जो इसकी परमिसिबल लिमिट है या एक्सेप्टेबल लिमिट है वो भी लिख लीजिए। परमिसिबल लिमिट इज 45 मिलीग्राम पर लीटर। सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा क्लोराइड कंटेंट के बारे में। सो क्लोराइड कंटेंट में अपन ने देखा कि हाई कंसंट्रेशन अगर क्लोराइड की होती है तो इट इंडिकेट्स दैट ईदर द पॉल्यूशन इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज। देन अपन कैसे डिटरमिन करते थे, सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते थे, टाइट्रेट करते थे इस सॉल्यूशन से एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इंडिकेटर यूज करते थे। सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन साथ में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता था व्हाइट कलर का एंड सिल्वर नाइट्रेट प्लस ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एक फाइनल रेड और ब्राउन प्रेसिपिटेट दे देता था सिल्वर क्रोमेट का। ओके, एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर दिस was 200 milligrams per liter and cause for rejection values for 100 milligrams per liter। नेक्स्ट अपन आते हैं नाइट्रोजन कंटेंट में। सो नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में अपन ने सीखा कि फर्स्टली इट इज प्रेजेंट इन 4 फॉर्म्स, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। फ्री अमोनिया क्या इंडिकेट कर रहा था, दैट देयर हैज बीन रीसेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर
कैसे डिटरमाइन करते थे? बाय सिंपली बॉइलिंग द वाटर सैंपल एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेटेड. द परमिसिबल लिमिट्स और एक्सेप्टेबल लिमिट्स वॉज 0.15 मिलीग्राम्स पर लीटर. देन अपन ने ऑर्गेनिक अमोनिया के बारे में पढ़ा. ऑर्गेनिक अमोनिया का इंडिकेट कर रहा है दैट देर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज स्टार्टेड. ओके, तो इसको अपन ने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्वांटिफाई किया? इसको बॉईल करते रहे उसी सैंपल को, आगे पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन के साथ में, पर मैग्नेट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है. एंड जो ऑर्गेनिक अमोनिया की गैस लिबरेट हुई उसको अपन ने नोट कर लिया. उससे अपने को ऑर्गेनिक अमोनिया की क्वांटिटी मिल गई वाटर सैंपल में कितनी है. नेक्स्ट, इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है इट इज 0.3 मिलीग्राम्स पर लीटर. देन अपन नाइट्रेट के बारे में आए. इट इज हाईली डेंजरस इफ इट इज प्रेजेंट इन द वाटर, क्योंकि ये पार्शियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेट कर रहा है. तो अपन ने इसको कैसे क्वांटिफाई किया? इसको अपन ने कलर मैचिंग टेक्निक यूज करके, जिसमें अपन ने सल्फोनिक एसिड यूज किया और नेप्थामीन यूज किया इसको कलर इंड्यूस कराने के लिए. एक्सेप्टेबल लिमिट 0 है. नेक्स्ट, लास्ट नाइट्रेट, ये अभी जस्ट पढ़ा है. ओके, सो अभी किसी को डाउट आ सकता है कि सर इसमें अपन ने नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में मेनली सिर्फ एक्सेप्टेबल लिमिट्स पढ़ी हैं, इसकी कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यूज कितनी है. सो सी नाइट्रोजन कंटेंट इन इटसेल्फ इट इंडिकेट्स दैट देयर हैज बीन रीसेंट पॉल्यूशन ऑफ सम सॉर्ट. फिर अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया किस तरीके का फॉर्म है उस नाइट्रोजन का, तो अपने को पता चल गया अलग अलग तरीके के डीकम्पोजिशन लेवल्स के हिसाब से अपन ने उनको अलग अलग कर लिया. अब इसकी कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यू भी जब अलग से किसी भी के लिए भी नहीं दी हो तो यही मानी जाएंगी. किसी भी केस में इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन लिमिट्स को अपन ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन ऐसी इमरजेंसी में अगर अपन ने फिर से अगर ये को इसको इस पैरामीटर को ब्रेक कर दिया, अगेन इट विल क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसी इन फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. So we stick to these limits. Nitrite should be 0. Nitrate should be 45 milligrams per liter. The value of organic ammonia is acceptable till 0.3 milligrams per liter, and the value of free ammonia is acceptable till 0.15 milligrams per liter. एक और टर्म अपन ने पढ़ी थी अभी, जेल्डाज अमोनिया. साइंटिस्ट है जेल्डा, उनके नाम पे ही है. जेल्डाज अमोनिया क्या डिनोट करता है? इट एक्सप्रेसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया. ठीक है, तो आपसे अगर जेल्डाज अमोनिया की एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ ली जाए तो आप उसमें दोनों को सम करके पूछ लेंगे या किसी तरीके से नाम पूछ लेंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चन आ सकते हैं. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अपन. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इट इज फ्लोराइड कंटेंट. ये चीज काफी बार अपन सुनने में आती है कि कुछ एरियाज में फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है तो वहां पे काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो फ्लोराइड कंटेंट ऐसी चीज है जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट भी रहती है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा चला जाए तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है. मिनिमम रिक्वायरमेंट क्यों रहती है कि अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, इतनी रिक्वायरमेंट मिनिमम रहती है फॉर योर गुड एंड वेल डेवलप्ड ग्रोथ ऑफ टीथ. अब अगर यही वैल्यू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा चली जाती है तो ये इन्हीं टीथ को नुकसान पहुंचाने लगती है, और फ्लोरोसिस आपको वहां पे देखने को मिलता है उन सब में जो ये पानी यूज कर रहे हैं, विच इज वाटर हैविंग फ्लोराइड कंटेंट ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर. सो आपके जो टीथ है इसका डीके होने लगता है, एंड अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है फ्लोराइड कंटेंट तो आपकी टीथ की ग्रोथ सही से नहीं होती है. सो this is about this fluoride content. Let's take notes for this.
So up to 1 milligram per liter of fluoride, up to 1 milligram per liter of fluoride is required for growth of for growth of permanent teeth and to prevent dental cavities and to prevent dental cavities. Next, if its concentration is greater than if its concentration is greater than 1.5 milligram per liter is greater than 1.5 milligram per liter, it causes deformation. It causes deformation of bones and results in disease that is termed as bone fluorosis and is termed as bone fluorosis. ठीक है. Next we will write down the acceptable limits. Acceptable limit is 1 milligram per liter या फिर 1 ppm and cause for rejection value कितना होगा 1.5 ppm या 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर. ठीक है, तो ये तो कुछ अभी एलिमेंट्स हुए. अभी अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मेटल्स जो प्रेजेंट हैं, वेरियस मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर, तो उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो अपने को याद होने चाहिए, उनकी लिमिट्स क्या है, क्या इम्पैक्ट्स हैं उनके. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज योर सोडियम. ठीक है, सोडियम के बारे में पढ़ते हैं. सोडियम वैसे तो अपन नमक भी खाते ही हैं, नमक यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में. पानी में भी काफी सोडियम रहता है, बट अगर ये कंसेंट्रेशन इसकी ज्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल हो जाता है. ये अपनी किडनी को अफेक्ट करता है. ये खाना जो होता है उसमें टेस्ट खराब करता है. ओके, और ये बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके उसमें करोजन भी करता है. नेक्स्ट, जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी अगेन हार्मफुल होता है. तो इसकी भी कंसंट्रेशन वेल विद इन लिमिट्स रहनी चाहिए, तो इस पे भी एक चेक रखना जरूरी है. ओके, सो लेट अस write down the points with regards to sodium. So presence of sodium in high concentration, presence of sodium in high concentration causes bad taste in water, causes bad taste in water and is harmful for kidney and also heart patients. Kidney and heart patients. Presence of sodium makes the metal surface corrosive. Makes the metal surface corrosive
and proves toxic for the plants and proves toxic for the plants. अब इसका डिटर्मिनेशन का प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एंड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डिटरमाइन करना. इसको स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड अपॉन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल्स से क्वांटिफाई किया जाता है. सो वेल आउट ऑफ कवरेज ऑफ द सिलेबस, but we should know the name of the process, so let us take it down. So Na in water is determined. Na in water is determined using atomic absorption. Using atomic absorption spectrometry. Using atomic absorption spectrometry. नेक्स्ट, सोडियम की एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या हैं? सो सोडियम इन वाटर generally varies in the range of 50 to 250 milligrams per liter. नेक्स्ट, जो मेटल्स इंपॉर्टेंट हैं, दे आर फेरिक आयंस एंड मैंगनीज. आयरन और मैंगनीज. ओके, now what is the reason that we need to study about iron and manganese? सी, अगर ये आयरन और मैंगनीज पानी में प्रेजेंट हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कलर इंड्यूस करेंगे वाटर में, जो कि अपन नहीं चाहते कि पानी में कलर हो. सेकेंडली, आयरन और मैंगनीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का भी काम करते हैं. तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो वो और ज़्यादा ग्रो करेंगे. तो अगेन अपन ये चाहते हैं कि ये अप टू अ सर्टेन लिमिट रहें जितना कि एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो लेट अस राइट डाउन. Iron and manganese causes color problem, if their concentration is greater than 0.3 milligram per liter and 0.05 milligram per liter respectively. नेक्स्ट लिखिए, आयरन एंड मैंगनीज also acts as a source of energy for several types of microorganisms. These are generally found in the water system. These are generally found in the water system devoid of oxygen.
क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड्स बना के अपने को वाटर सिस्टम में देखने को मिलता है। किस तरीके से आपको ये ऑब्जर्व हो सकता है? आपके आयरन प्रेजेंट हो +2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होता ही है, और वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये FeOH3 बना लेगा। वहीं मैग्नीज +2 के फॉर्म में अपने ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करके अगेन ये MnO2 बना लेता है, विच इज अगेन अ प्रेसिपिटेट। ठीक है। सो अब एक बार इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स देख लेते हैं दोनों की कितनी है। सो एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर आयरन इज 0.1 milligrams per liter. Cause for rejection value for iron again is 1 milligram per liter. Okay. And next जो आपकी acceptable limit है for manganese, it is 0.05 milligram per liter, and the cause for rejection value for manganese is 0.5 milligrams per liter. ओके, आई होप ये वैल्यूज आप याद रखेंगे, लिख लीजिए इसको अपनी नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉपर in high concentration, if it is there in the water, it will adversely affects the lungs of us, of our, तो अगर ये ज़्यादा कंसेंट्रेशन में है तो अपने लंग्स खराब करेगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा। सेकेंडली, अगर इसकी कंसेंट्रेशन 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट इंड्यूस करता है। मैंने पहले भी एक बार लैक्सेटिव इफेक्ट के लिए एक कंपाउंड का नाम लिया था, आप अगर याद कर पा रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो प्लीज़, जिससे पता चले कि सॉरी आपको पुराने लेक्चर्स की जो भी पढ़ाया गया था वो याद है या नहीं है। सो लैक्सेटिव इफेक्ट मैं याद दिला दूं, थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि आपको वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा, मैंने आपको ऐसा बताया था, आपका पेट गड़बड़ होने लगेगा, तो वो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। चलिए कॉपर के बारे में लिख लेते हैं, तब तक आप सोचिए कि आपके माइंड में आएगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, जिसके माइंड में वो कंपाउंड का नाम आ गया है। ठीक है, नाउ Cu2 plus in high concentration copper in high concentration affects the lungs, and respiratory organs, affects the lungs and respiratory organs. Next point, copper sulfate, if greater than 250 milligrams per liter, then it induces laxative effect. It induces laxative effect. ठीक है, देन इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स देख लेते हैं। सो एक्सेप्टेबल लिमिट इज 0.05 milligram per liter, and cause for rejection value is 1.5 milligrams per liter. ओके, सो ये हुआ अपना डिस्कशन मेटल्स के बारे में, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। आज के लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करे, सिर्फ आज थ्योरी पार्ट चलता रहा, तो हो सकता है कुछ जनों के लिए आज ये टायरिंग सेशन रहा हो। सो देखो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज फुल ऑफ एवरीथिंग,
न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत सारे इसमें हैं, कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, याद करने की या जिसको अपन बोलते हैं रट्टा लगाने की चीज़ें भी बहुत सारी हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें भी काफ़ी हैं। तो कोई लेक्चर आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, कोई लेक्चर में न्यूमेरिकल्स अपन ज़्यादा करेंगे, किसी लेक्चर में कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा रहेगा। सो सारी चीज़ें कवर रहेंगी इसमें। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही अपना ऐसा है, जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं इसमें अपन ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप दो चार बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद में आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप एनवायरमेंट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, फुल स्कोर करना चाहते हैं, कि कोई भी एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो ऑल दीज things that I am covering in the lecture should be in your fingertips. Then only it will be possible for you to cover and crack all the questions of the environment engineering. Okay, so that's all for today's class. In the next class, we will be discussing about some chemical quality parameters with respect to gases. एंड उसके बाद में ये अपना जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का और फिजिकल का एंड हो जाएगा। इसके बाद में अपन कुछ बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स थोड़े बहुत हैं वो देखेंगे, एंड उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।